Mathematics, Class 3. Welcome, Groomies. Today we are going to start chapter number 5, Division. Now, our first topic is division methods. Division by equal sharing. 5 friends share 20 books. How many books does each friend get? डिविजन बाय इक्वल शेयरिंग होता है 5 फ्रेंड्स हैं उनको 20 बुक्स शेयर करने हैं. अब हर फ्रेंड के पास कितने बुक्स आएंगे ग्रूमीज? वी राइट दिस एज 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4. जब हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4. Here 20 is called the dividend, 5 is the divisor and 4 is called the quotient. Now, one important thing. Division is equal sharing of objects. Division क्या है? It is equal sharing of object. किसी भी object की equal sharing. The symbol of division is this. As you can see in this picture, division का symbol ऐसा होता है. Now, division by repeated subtraction. अब हम division repeated subtraction से कैसे कर सकते हैं? You can see this on page number 67 of your book. Ravi has 12 kites. He wants to give 3 kites to each of his friends. How many friends can he share his kites with? अब रवि के पास 12 kites हैं और वो अपने हर फ्रेंड को 3 kites देना चाहता है. अब रवि अपने कितने फ्रेंड्स के साथ वो kites शेयर कर सकता है? So what we will do? Repeated subtraction. So total number of kites were 12 और रवि कितने kites देना चाहता है? 3. तो हम 12 में से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को. द आंसर वी विल गेट इज 9. देन नेक्स्ट व्हाट वी विल डू? वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9. 9 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया. देन वी गॉट 6. अब हम सेम वही करेंगे. 6 में से 3 को रिपीट करेंगे. देन वी विल गेट 3 एंड देन एट द लास्ट 3 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0. This is called repeated subtraction. जब तक 0 नहीं आ जाता हमें subtraction करते रहना होता है. When 3 is subtracted 4 times from 12, no kites are left out. जब हमने 3 को subtract किया 12 में से और कितने times किया? 4 times. तो एक भी kite नहीं बची. Therefore, Ravi can give his kites equally to 4 friends. रवि अपनी kites कितने friends को equally दे सकता है? 4 friends को. Division by counting backward. अब हम backward counting से division कैसे कर सकते हैं? On the number line, we can show repeated subtraction by counting backward in equal number of hops. हम equal number of hops में number line पर backward jump करते हैं. As you can see in the picture, हमने 12 से लेकर 9 पर first jump किया. फिर हमने 9 से 6 पर jump किया. Then 6 to 3 and then 3 to 0. यहाँ हमने 3 steps का हॉप किया. हमने 3 नंबर्स को स्किप करके हॉप किया. Now, division by counting multiplication facts. अब हम division कैसे करेंगे? By multiplication facts. This is also on page number 67 of your book. Division is the opposite of multiplication. So, we can use multiplication facts to divide numbers.
हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं टू डिवाइड नंबर्स. इफ़ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12, अगर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर 12 है, तो हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 and 12 divided by 4 is equals to 3. And if 2 multiplied by 10 is equals to 20, then 20 divided by 2 is equals to 10 and 20 divided by 10 is equals to 2. जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, और जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर 2 आएगा. So this is how we can use multiplication facts. Now, division using regrouping and sharing. You can see this example on page number 68 of your book. What we will do first, first step, अब हमें divide करना है 26 को 2 से. Okay. So step 1, we regroup this as 26 is equals to 2 tens plus 6 ones. 26 को हमने कैसे कर दिया, 2 tens plus 6 ones. Now step number 2, अब हमें 26 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 tens और 6 1 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2. अब हमने क्या किया, हमने 2 को हाफ कर दिया, 2 tens जो था उसको हाफ कर दिया, तो वो 1 10 बच गया, और जो 6 ones था उसको भी हमने हाफ कर दिया, तो वो कितना बच गया, 3 ones. सो 10 1 10 प्लस 3 ones, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13. Thus 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 13. Now divide 363 by 3. हम 363 को 3 से डिवाइड करेंगे. अब हम ये कैसे करेंगे, देखो, जो हमारा नंबर है वी रीग्रुप दिस एज 363 को हमने डिवाइड कर दिया, 300 प्लस 6 टेंस प्लस 3 वंस. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे. 300 प्लस 6 टेंस प्लस 3 वंस को हमने ब्रैकेट में लिखा, एंड ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा डिवाइडेड बाय 3. अब हम जो 300 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 होता है, तो हमने 100 लिखा. 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, तो हमने 2 टेंस लिखा. और फिर अगेन 3 है नंबर, तो 3 1 जा 3, तो हमने क्या लिखा, 1 ones. तो ऐसे कैसे आ गया, 100 प्लस 2 टेंस प्लस 1 ones. अब हम इसे नंबर फॉर्म में लिखेंगे, तो 100 प्लस 20 प्लस 1, तो हमारे पास नंबर आ गया 121. Thus 363 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 121. I hope, Roomies, this is clear to you. Now, exercise 5A. Divide by equal sharing. This is question number 1. 12 divided by 4. अब यहाँ पर 12 stars हैं और हमें 4 डिवाइड करने हैं. तो what we will do? हमें 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3. Yes, Groomies, very good. Now, next what we will do is divide by repeated subtraction. अब हमें repeated subtraction करना है question number 2 में. So our first one is 24 divided by 8. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम हर बार 8 को माइनस करते जाएंगे. हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उसमें से 8 को माइनस करते जाएंगे. सो व्हाट्स द फर्स्ट वन, 24 माइनस 8. तो 24 माइनस 8 इज 16. नेक्स्ट, अब हमारे पास 16 आंसर आया है, तो हम 16 माइनस 8 करेंगे. सो 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8. देन अगेन 8 माइनस 8
इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमने कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, 3 टाइम्स। सो 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 3। हमारा आंसर क्या आ गया ग्रूमीज, 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ऑन द नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें यहाँ पर 0 to 10 का एक नंबर लाइन गिवन है। ओके, तो अब हम इसमें बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 10 से बैकवर्ड आएंगे 5 स्टेप्स। जब हमने फर्स्ट जंप किया तो हम आए 5 पर, एंड देन जब हमने सेकंड जंप किया तो हम आए 0 पर। सो हम कितने टाइम्स आए ग्रूमीज, हमने कितने हॉप्स लिए, 2 हॉप्स, 2 जंप्स लिए हमने। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2। हमने जितने जंप्स लिए वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ रीग्रुप एंड डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 4 इज रीग्रुप एंड डिवाइड। इसमें नंबर फर्स्ट है 28 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको 28 को सेपरेट कर देंगे। हमने उसको बना दिया 2 10s प्लस 8 1s डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 110 प्लस, अब 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 1s। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 10s प्लस 4 1s। और 1 10s प्लस 4 1s क्या होता है ग्रूमीज, 14। वेरी गुड। नाउ our next method is short method of division. Division का एक short method भी होता है। On page number 70 of your book, you can see this example. Under the short method of division, we divide the number using reverse multiplication. हम इसमें reverse multiplication use करते हैं। So, see this example. 63 divided by 7. हमें 63 को 7 से डिवाइड करना है। From multiplication table of 7, we know that 7 multiplied by 9 is equals to 63. हमें 7 का टेबल लर्न है, तो हमें ये भी पता है कि 7 9s are 63 होते हैं। So 63 divided by 7 is equals to 9 using the short division method. तो अब देखो 7 क्या है हमारा, डिवाइज़र है, 63 हमारा डिविडेंट है, और 9 क्या है हमारा, कोशेंट है। सो सिमिलरली अब ये हमने कैसे किया, बहुत स्मॉल मेथड में हमने इसे सॉल्व कर दिया। सिमिलरली 24 डिवाइडेड बाय 2 इज़, हम 2 को इधर लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट बना के 24 को अंदर लिखते हैं, और 12 को हम उसके नीचे लिखते हैं। जो हमारा क्वोशंट आता है उसे हम नीचे लिखते हैं। नाउ एक्सरसाइज 5B, आपको एक्सरसाइज 5B में यही मेथड सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिखना है। सो नंबर फर्स्ट इज 12 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ग्रूमीज, 3, क्योंकि हमें 4 का टेबल लर्न है। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। सो 4 3s are 12। नाउ लॉन्ग डिविजन मेथड। अब हम लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करके सीखेंगे डिविजन करना। फॉर द लॉन्ग डिविजन वी यूज़ द गिवन फॉर्मेट। हम ये जो फॉर्मेट है वो यूज़ करते हैं। हम डिवाइज़र बाहर लिखते हैं, डिविडेंड अंदर लिखते हैं, और क्वोशंट ऊपर लिखते हैं। शॉर्ट डिवीजन में हमने क्या किया था, क्वोशंट को नीचे लिखा था, बट लॉन्ग डिवीजन में हम क्वोशंट को ऊपर लिखते हैं। नाउ दिस एग्जाम्पल इज ऑन पेज नंबर 71 ऑफ योर बुक। डिवाइड 164 बाय 2। हम 164 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो बिगिन द डिविजन बाय टेकिंग द फर्स्ट डिजिट। हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को यूज़ करके डिवीजन
स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप 1, अब स्टेप 1 क्या है देखो, हम फर्स्ट डिजिट तो यूज़ करते हैं, बट जो हमारा डिवाइज़र है वो तो हमारे डिविडेंड के फर्स्ट नंबर दैट इज़ 1 उससे बड़ा है, तो 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता। सो व्हाट वी विल डू, वी टेक द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट्स टुगेदर, हम फर्स्ट और सेकेंड डिजिट्स को एक साथ लेते हैं। अब वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 6 16। सो हम 2 को पहले, हम 16 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो इन स्टेप 2 व्हाट वी विल डू, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है ग्रूमीज, 8 टाइम्स। सो वी विल राइट 6 2s are 6, oh sorry 2 8s are 16। हमने 8 को ऊपर लिखा और 16 को हमने 16 के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0। नाउ इन स्टेप 3 व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग डाउन नंबर 4, हम जो 4 नंबर बचा हुआ है उसे भी नीचे कैरी कर लेंगे। नाउ वी विल डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 2, अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है ग्रूमीज, दैट इज सेकेंड टाइम। सो 2 2s are 4, अब हम 8 के पास में 2 लिख देंगे और 4 के नीचे हम 4 लिख के उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आवर रिमाइंडर विल बी 0। This is how we will get our remainder. Therefore, 164 divided by 2 is equals to 82. हमारा आंसर क्या आ गया ग्रूमीज, 82। We can check whether the answer is correct or not by formula divisor multiply by quotient is equals to dividend। अब हम अपना डिविजन कैसे चेक कर सकते हैं ये सही है या नहीं, इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, हमें अपने डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है और वो हमारे डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। तो हमारा डिवाइज़र क्या है 2 और हमारा क्वोशंट अभी क्या आया 82, तो हम 2 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर, हमारा डिविडेंड आ जाएगा दैट इज़ 164। तो इससे हमें क्या पता चला ग्रूमीज कि हमने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, डिवीजन विद रिमाइंडर एक्सेप्ट 0। अब अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास आंसर लास्ट में 0 आया है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो सी, you can see this example on page number 72 of your book. 25 birds were trying to sit on 2 wires. 25 birds थे, वो 2 wires पर sit करने का try कर रहे थे। Now, try drawing an equal number of birds on both wires. अब आपको क्या try करना है, 2 wires draw करके उन पे equal number of birds को sit कराना है। 25 बर्ड्स हैं टोटल, अब 25 बर्ड्स को आपको इक्वल नंबर में दोनों वायर्स पे ड्रॉ करना है, तो हम कर सकते हैं क्या ये ग्रूमीज, नो। हाउ मेनी ऑफ द बर्ड्स लेफ्ट आउट, आपने जब 1 1 1 1 बर्ड ड्रॉ किया दोनों वायर्स पे, तो कितनी बर्ड बाहर बच गई जो नहीं बैठ पाई वायर पर। ओके, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इक्वली, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट्स को इक्वली ग्रुप कर पाते हैं। समटाइम्स मे बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट ओवर, बट समटाइम्स क्या होता है हम कभी कभी ग्रुप नहीं कर पाते हैं, एक दो ऑब्जेक्ट्स लास्ट में एक्स्ट्रा बच जाते हैं। वी कॉल दिस अ रिमाइंडर, हम इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जो बच गया। नाउ लेट अस सॉल्व द above problem by a long division method। अब हम long division method से ये ऊपर वाला problem solve करेंगे। Now what you have to do, divide 2 by 2
टू गेट क्वेश्चन 1। हम क्या करेंगे, हम 2 डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, 25 नंबर ऑफ बर्ड्स थे तो उसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा एंड 2 को हमने बाहर लिखा। नाउ 2 की टेबल में 25, अब देखो हमने पहले फर्स्ट डिजिट लेते हैं हम, तो 2 की टेबल में 2 आता है एंड कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। सो वी हैव रिटन 2 1s are 2 और हमने 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 को नीचे राइट करेंगे। ओके, अब 2 की टेबल में 5 आता है क्या ग्रूमीज, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो 5 तो नहीं आता। सो व्हाट वी विल डू, हम 5 से जो स्मॉलर नंबर आता है वो लिख देंगे। सो 2 2s are 4, तो हमने 5 के नीचे 4 लिख दिया और हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट रिमाइंडर वी विल गेट, 1। अब हमारा आंसर 0 नहीं आया ना, अब हमें क्या मिला लास्ट में, 1। अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता। सो व्हाट वी हैड, देयरफॉर 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12 विद रिमाइंडर 1। अब हमने इसका आंसर कैसे लिखा, 12 विद रिमाइंडर 1, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा है। We can check whether the answer is correct or not by formula divisor multiplied by quotient plus remainder is equals to dividend। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम जो डिवाइज़र है उससे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे और ये हमारे डिविडेंड के इक्वल होगा। सो हमारा डिविडेंड क्या है, 25। अब हमारा डिवाइज़र है 2, उसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने क्वेश्चन से जो है 12 और हमने उसमें प्लस किया हमारा रिमाइंडर जो कि है नंबर 1। सो दिस इज इक्वल टू नंबर 5। तो इससे हमें पता चल गया हमने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ our next topic for today is properties of division। डिविजन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। Now let's see division by 1। When any number is divided by 1, the quotient is the number itself। जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट होता है वो नंबर खुद ही होता है। अगर हम 63 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 63 एंड इफ़ वी डिवाइड 24 बाय 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 एंड इफ़ वी डिवाइड 32 बाय 1 हमारा आंसर आ जाएगा 32। दिस इज ऑन पेज नंबर 73 ऑफ योर बुक। नाउ on page number 74 of your book, division by same number। When a number is divided by the number itself, the quotient is 1। जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट क्या आता है, 1। If we divide 63 from 63, answer is 1। If we divide 24 by 24, that is equals to 1 and when we divide 32 by 32, the answer is 1। Now division of 0। अब division of 0 क्या होता है, when 0 is divided by any number except 0, the quotient is 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, whether it is 2 digit number or 3 digit number, हमेशा हमारा क्वोशंट 0 ही आएगा। सी 0 डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 32 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो हमें क्या पता चला, अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0। नाउ division by same number। division by same number। अब division by same number क्या होता है, when a 2 digit number is divided by 10,
the digit in the ones place becomes the remainder and the digit in the tens place becomes the quotient. बहुत ईजी हो जाता है ये. देखो, डिविजन ऑफ 10, पेज नंबर 74. जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे वंस प्लेस का जो डिजिट है वो तो रिमाइंडर बन जाता है और जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो क्वोशंट बन जाता है. अब इसमें हमने क्या किया, 63 डिवाइडेड बाय 10, तो 6 तो हमारा क्वोशंट बन जाएगा और 3 हमारे पास रिमाइंडर में एज एन आंसर बच जाएगा. तो इसमें हमने क्या किया, जो वंस प्लेस वाला था वो तो हमारा रिमाइंडर बन गया 3, और जो 6 था जो टेंस प्लेस पे था वो हमारा क्वोशंट बन गया. नाउ एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड यूजिंग द शॉर्ट मेथड. अब हमने शॉर्ट मेथड सीखा था, उससे हमें डिवाइड करना है. सो नंबर फर्स्ट इज 4 डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड 36 बाय 4. सो अब हम 4 का टेबल बोल के देखेंगे. 4 के टेबल में कितने टाइम्स 36 आता है, दैट इज 9. सो 9 विल बी आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड यूजिंग द लॉन्ग मेथड. चेक योर आंसर्स. अब हमें लॉन्ग मेथड यूज करके डिवाइड करना है एंड वी हैव टू चेक आवर आंसर. फर्स्ट, डिवाइड 242 बाय 4. अब हमको 242 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमने लॉन्ग डिवीजन वाला बॉक्स बनाया ब्रैकेट बना के एंड वी हैव रिटन द नंबर्स इन देयर प्लेसेस. अब व्हाट वी विल डू, हम डिवीजन करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2. हमारा रिमाइंडर क्या बच गया ग्रूमीज, 2. एंड व्हाट क्वोशंट वी विल गेट, 60. नाउ अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. डिवाइजर को जब हमने क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया एंड उसमें रिमाइंडर ऐड किया तो वो हमारे डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा. दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 242. हेंस द आंसर इज करेक्ट. इससे हमें पता चला कि हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल बाय मेंटली डिवाइडिंग द गिवन नंबर्स. अब हमें मेंटल कैलकुलेशन करके डिवीजन करना है. अब अगर हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा एंड रिमाइंडर क्या आएगा वो हमको लिखना है. तो हमने सीखा है कि हम जब 10 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो क्या होता है, जो वंस प्लेस का नंबर होता है वो रिमाइंडर बन जाता है और जो टेंस प्लेस का नंबर होता है वो क्वोशंट बन जाता है. सो 3 will be our quotient and 0 will be our remainder. Now, our next topic for today is word problems. Now, let us do some division word problems. There are 48 balloons. Divide these amongst 4 children equally. यहाँ पर 48 balloons हैं और हमें उन्हें 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है. दैट विल बी इक्वली. नाउ टोटल नंबर ऑफ बलून्स हमारे पास कितने हैं, 48 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4. तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे. हमने 48 ब्रैकेट के अंदर लिखा एंड 4 हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा. नाउ हाउ वी विल सॉल्व, 4 1s are 4, तो हम 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर विल बी 0. और फिर हम 8 को नीचे कॉपी करेंगे. जब हमने 8 को नीचे राइट किया सो 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है ग्रूमीज, 2 टाइम्स. सो 4 2s are 8. फिर हमने 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन आवर रिमाइंडर विल बी 0. नाउ व्हाट विल बी द आंसर, balloons for each children is equals to 48 divided by 4. Therefore,
Each child gets 12 balloons. हर बच्चे के पास कितने balloons होंगे अब? 12 balloons. Yes, groomies. So, this is how you have to follow the steps and solve these questions. Groomies, you have to do all the related exercises in your notebook. Thank you for joining today's class.